શ્રી વલ્લભ કન્યા કેળવણી મંડળ રાજકોટ સંસ્થાના સ્થાપના વર્ષ 1946 થી દીકરીઓના સર્વાંગી વિકાસ માટે અવિરતપણે કાર્યરત શ્રી વલ્લભ કન્યા કેળવણી મંડળ શ્રી કડવીબાઈ વિરાણી સ્કૂલ કેમ્પસ રાજકોટના 75મા વર્ષના મંગળ પ્રવેશના પર્વને વધાવીએ. આવો સલામત અને સ્વસ્થ રહીને અનોખી શૈલીમાં ઉજવીએ આ અમૃત પર્વ. શ્રી કડવીબાઈ વિરાણી કન્યા વિદ્યાલય રાજકોટની યુટ્યુબ ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે. વ્યવસાયલક્ષી ગૃહ વિજ્ઞાન પ્રવાહ, હાઉસકીપિંગ, ધોરણ 11, વિષય સોશિયલ સ્કિલ્સ એન્ડ રિપોર્ટેબલ મેટર્સ, પ્રકરણ 3, રિસેપ્શનિસ્ટના ગુણો અને ફરજો, તાસ 5. વિદ્યાર્થી મિત્રો, રિસેપ્શનિસ્ટના આ પ્રકરણમાં આજે આપણે સીવી અને રેઝ્યુમ કોને કહેવાય એના વિશે માહિતી મેળવશું. તમારા માટે આ બે શબ્દ નવા છે, પણ એના વિશે સમજૂતી મેળવ્યા પછીની અગત્યતા સમજ્યા પછી ખ્યાલ આવશે કે એના વિશે જાણવું કેટલું જરૂરી છે. રિસેપ્શનિસ્ટ કેટલી અગત્યની છે એના વિશે આપણે ઘણી બધી વાત કરી. એને આપણે કંપનીની ઓલ ઇન વન સ્કિલ્ડ પર્સનાલિટી કહી શકીએ. એટલે કે એક એવી વ્યક્તિ કે જેને કોઈ એક કંપની કે હોટેલમાં લગભગ દરેક વિભાગમાં થતી કામગીરી વિશેની સ્કિલ હોય છે, કુશળતા હોય છે, જાણકારી હોય છે. તો આ પોસ્ટ ખૂબ અગત્યની છે, એ આપણે અનેક રીતે જોયું. હવે આ અગત્યની પોસ્ટ મેળવવાને માટે એપ્લિકેશન કરવી પડશે. જ્યારે એની જાહેરાત આવશે, ત્યારે ક્યાંય જોબ વેકેન્સીની એડ આવી હોય ત્યારે આપણે એપ્લિકેશન કરીએ છીએ. તો એપ્લિકેશન વર્ડ અત્યારે થોડો જૂનો ગણાય છે. સાથે પાછું ફરી એક વખત યાદ કરાવું છું કે તમે વ્યવસાયલક્ષી અભ્યાસક્રમના વિદ્યાર્થીની છો. આપણો જે કોર્સ છે એ ઇન્ટરનેશનલ લેવલનો છે. તમને જોબને લગતો, બિઝનેસને લગતા અમુક શબ્દોની ખબર હોવી જોઈએ. જો એ ખબર હશે તો આજના સમયમાં જોબ મેળવવી ખૂબ સારી પડશે, અને મેળવ્યા પછી આપણને પણ સેટિસ્ફેક્શન મળે અને જોબ આપનારને પણ મળે. એ પ્રકારનું આપણે કામ પણ આપી શકીએ. આપણું કોન્ફિડન્સ લેવલ પણ હાઈ બને. જેની પાસે જાણકારી છે, પૂરતું નોલેજ છે, એના કોન્ફિડન્સ આખો અલગ જ હોવાનો છે. હવે રિસેપ્શનિસ્ટ માટે જ્યારે આપણે વાત કરતા હતા ત્યારે એક વાત કરી હતી કે કંપનીનો ચહેરો છે, કંપનીનો અવાજ છે. મતલબ એ ફર્સ્ટ ઇમ્પ્રેશન પાડે છે ગ્રાહક ઉપર, પછી કોઈ પણ જગ્યાએ હોય. એ જ રીતે આ સીવી અને રેઝ્યુમ એટલે કે એપ્લિકેશન, આપણે જેને શબ્દમાં કહીએ છીએ કોઈ એક જોબ માટેની એપ્લિકેશન લેટર, એનો જ એક પ્રકાર છે, એનું સ્વરૂપ છે જે હાલમાં વધારે ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે અને એને આ જ શબ્દ દ્વારા ઓળખવામાં આવે છે. એ એવી વસ્તુ છે કે જે આ રિસેપ્શનિસ્ટ તરીકે જે જોબ કરવા ઈચ્છે છે એની પર્સનાલિટીને, જેને જોબ આપવી છે, એના તરફ પાડશે. સીવી અને રેઝ્યુમે એ રિસેપ્શનિસ્ટ માટેની જે વ્યક્તિ છે એનો પ્રથમ અવાજ અને પ્રથમ ચહેરો, એક રીતે કહીએ તો શાબ્દિક સ્વરૂપે જે તે કંપની સમક્ષ મૂકશે. તો આ અગત્યની વસ્તુ છે, કારણ કે જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ એકબીજાને ઓળખતા નથી, જોયા નથી, ત્યારે એનું કરેલું કોઈ એક કામ, એનું કરેલું કોઈ એક પ્રેઝન્ટેશન આપણા સમક્ષ આવે તો ખ્યાલ આવી જાય કે આ વ્યક્તિ કયા પ્રકારની છે. તો આ સીવી અને રેઝ્યુમ છે એ આ પ્રકારનું છે કે વ્યક્તિને પ્રેઝન્ટ કરે છે શાબ્દિક રીતે કોઈ એક કંપનીના તરફ. તો એને બનાવતી વખતે ખૂબ જ ધ્યાન રાખવું જોઈએ. તો એ કોને કહેવાય સીવી ને રેઝ્યુમમાં શું ધ્યાન રાખવું જોઈએ એના વિશે આગળ આપણે માહિતી મેળવીએ. તમે જ્યારે પણ કોઈ પોસ્ટ કે જગ્યા માટેની એડ જોવો છો કે આ જગ્યાએ આ પોસ્ટ ખાલી છે, ત્યારે બાજુમાં જ એક કોલમ આપેલી હોય છે કે આના માટે કેટલી લાયકાત જરૂરી છે. હવે બની શકે કે આપણને ખ્યાલ હોય કે ન હોય, પણ ઈચ્છા હોય કે મારે આ પ્રકારનું કામ કરવું છે. જો આપણે લાયકાત જોઈએ તો ખ્યાલ આવે કે આ પ્રકારની લાયકાત આપણામાં છે કે નહીં. એ પ્રકારનો કોઈ ડિપ્લોમા કે કોઈ આપણે સ્પેશિયલ કોર્સ કરેલો છે
કે નથી કરેલો, તાલીમ લીધેલી છે કે નથી લીધેલી. અને ઘણી વખત એવું થતું હોય છે કે કોઈ વ્યક્તિને ખૂબ જરૂરિયાત હોય છે, ખૂબ બધો અભ્યાસ કર્યો હોય છે ત્યારે, અને નોકરીની જરૂરિયાત ખૂબ હોવાના કારણે એ ઓછી લાયકાત વાળી જોબ માટે પણ એ લોકો પોતાનું સીવી ભરતા હોય છે, પ્રેઝન્ટ કરતા હોય છે. તો લેનાર વ્યક્તિને ખ્યાલ આવે કે મને જરૂરી છે, એના કરતા આ વ્યક્તિએ ઘણું બધું અભ્યાસમાં મેળવેલું છે, તો એ ચોક્કસ આ પોસ્ટને ન્યાય આપી શકશે. તો વ્યક્તિ જે તે જગ્યા માટે, જે તે પોસ્ટ માટે કે નોકરી માટે લાયક છે કે નહીં, એ આના ઉપરથી નક્કી થઈ જાય છે. સીવી નું પૂરું નામ છે કરિક્યુલમ વિટે. આ જે શબ્દ છે એ બોલવામાં થોડો અટપટો લાગે છે, એના ઉચ્ચાર આપણા માટે જુદા છે, કારણ કે એ લેટિન ભાષાનો શબ્દ છે અને એનો અર્થ થાય છે કોર્સ ઓફ લાઈફ. અને એને આપણે સરળ રીતે સમજીએ તો, જ્યારે આપણે કોઈ જગ્યાએ એપ્લિકેશન કરતા હોઈએ છીએ ત્યારે ખાસ તો એમાં આપણે અભ્યાસ લખતા હોઈએ છીએ કે આપણે કયો કયો અભ્યાસ કર્યો છે. તો જે કંઈ અભ્યાસ આપણે કર્યો હોય, કોઈ તાલીમ મેળવી હોય, એની સંપૂર્ણ યાદી જે છે એને આ સીવી કહેવામાં આવે છે. તેનો સરળ ભાષામાં અર્થ છે કે જે કંઈ પણ આપણે કુશળતાઓ પ્રાપ્ત કરી હોય એ દરેકનો આપણે યાદી સ્વરૂપે પ્રસ્તુત કરવાની હોય છે. જ્યારે આ કરિક્યુલમ વિટે તૈયાર કરવાનો હોય ત્યારે એમાં કઈ કઈ વિગતો લખવાની હોય એની જરા ટૂંકમાં યાદી જોઈએ. તો પહેલી વિગત આવશે વ્યક્તિગત માહિતી બધી એમાં આપવાની છે, નામ, ઉંમર, કોન્ટેક્ટ નંબર, આ દરેક વસ્તુ આપવાની થશે. બીજું અભ્યાસ, અને ત્રીજું છે ખાસ કોઈ તાલીમ લીધેલી હોય જે તે સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ માટે અથવા કોઈ જોબ માટેની. ચોથું શોખ, આપણી હોબીઝ કઈ કઈ છે, કારણ કે ઘણી વખત વ્યક્તિ પોતાનો જે શોખ હોય એ મુજબ જ એને તાલીમ લીધેલી હોય, એ પ્રકારની પોસ્ટ માટે એપ્લાય કરતી હોય ત્યારે એ જુદા પેશન સાથે કામ કરતી હોય છે, અને એટલે એ જ્યારે કામ આપે છે એનું લેવલ આખું અલગ હોય છે. એની જોબ સેટિસ્ફેક્શનની વ્યાખ્યા અલગ હોય છે, જોબ સેટિસ્ફેક્શનનું લેવલ અલગ હોય છે. તો આ બધી વસ્તુ છે એમાં મેન્શન કરવાની હોય છે. અને પાંચમું છે સંદર્ભ, કે કયા રેફરન્સથી આપણે આ જોબમાં એપ્લાય કર્યું છે, એ વાંચેલું હોય, છાપામાં જોબ માટેની એડ જોઈ હોય કે કઈ રીતે આપણે આના માટે અપ્લાય કર્યું છે આ પોસ્ટ માટે, એની પણ વિગત એમાં ટૂંકમાં સૂચવવાની હોય છે. બીજું છે રેઝ્યુમ એટલે શું. રેઝ્યુમ શબ્દ આપણા માટે નવો છે. રેઝ્યુમ એટલે ફરીથી ચાલુ કરવું. આજના સમયમાં તમને ખબર છે કે ઘણી વખત એવું બનતું હોય છે કે બધા પાસે સરકારી નોકરી ન હોય, પ્રાઇવેટમાં જોબ કરતા હોય, લાયકાત ઘણી વધારે હોય, પણ શરૂઆતમાં જરૂરિયાત હોવાને કારણે જે કોઈ પ્રથમ જગ્યાએ જોબ મળી હોય એ વ્યક્તિએ સ્વીકારી લીધી હોય, પછી અભ્યાસની સાથે સાથે અથવા તો થોડા સમય પછી બીજી કોઈ સારી જગ્યાએ એને જોબ ઓફર થતી હોય કે એ જાહેરાત જોવે, એડ જોવે, તો એમાં પણ એ એપ્લાય કરે છે. પોતાની એક જોબ કન્ટિન્યુ છે અને અથવા તો એ મૂકી દીધી છે અને બીજી જગ્યાએ એપ્લાય કરે છે. તો ત્યારે જે બીજી વખત એપ્લિકેશન કરવામાં આવે, એક વખત વ્યક્તિએ કોઈ એક જગ્યાએ કામ કરી લીધું છે, પછી બીજી વખત જ્યારે એપ્લાય કરે છે ત્યારે જે એપ્લિકેશન લખે એને રેઝ્યુમ કહેવામાં આવે છે. આમાં તફાવત એટલો હોય છે કે એમાં એના આગળ જે કંઈ અનુભવો થયેલા હોય છે, જેટલા વર્ષનો એક્સપિરિયન્સ હોય છે, એની સંપૂર્ણ વિગત છે એ એમાં એને આપવાની હોય છે. અને એ વિગત એવી હોય છે કે જેમાં ખાસ કરીને એક્સક્લુઝિવ પ્રોફેશનલ એનું ટેલેન્ટ જે કંઈ હોય, જે કંઈ પોસ્ટ માટે એને અપ્લાય કર્યું હોય એના માટે એની પાસે ખાસ કઈ કઈ લાયકાત છે, સ્કિલ છે, કુશળતા છે, એની એને માહિતી આપવાની હોય છે. આમાં પર્સનલ ડેટા ઓછી હોય છે, પણ રેઝ્યુમમાં ખાસ તો એની પાસે જે અગત્યતાની જે અગત્યતા વાળી કોઈ સ્કિલ છે જે જે તે પોસ્ટ માટે ખૂબ જરૂરી છે એના વિશેની માહિતી આપેલી હોય છે. એટલે રેઝ્યુમ પ્રમાણમાં શોર્ટ રીતે લખાતું હોય છે. એપ્લિકેશન ટાઈપ છે, ઔપચારિક પત્ર જ છે, પણ જેણે એક વખત અનુભવ મેળવી લીધેલો છે એવી વ્યક્તિ દ્વારા જ્યારે અપ્લાય કરવામાં આવે બીજી કોઈ જગ્યાએ કોઈ પોસ્ટ માટે, એને રેઝ્યુમ કહેવામાં આવે છે. રેઝ્યુમમાં કઈ કઈ માહિતી આપવી જોશે, તો એમાં
વ્યક્તિગત માહિતી તો આપવાની જ હોય, ફોટાની સાથે આપવાની છે, પણ એને બહુ મહત્વ આપવામાં નથી આવતું, પણ એ આપવાની તો હોય જ છે. બીજું અભ્યાસ, જે ક્વોલિફિકેશન એને મેળવેલી હોય, એની જે કાંઈ ડિપ્લોમા કે ડિગ્રી કોર્સ એને કરેલા હોય, કઈ જગ્યાએ કરેલા છે, એ દરેક વિગત તો એને આપવાની જ હોય છે. ત્રીજું, કોઈ ખાસ રિસર્ચ કરેલું હોય કોઈ એક ક્ષેત્રમાં, તો એના વિશેની માહિતી પણ આપવાની હોય. એ રિસર્ચ માટેનું એને ગાઈડ કોણે કર્યા, તેના ગાઈડનું નામ પણ એમાં હોઈ શકે. કયા વિભાગમાં એને રિસર્ચ કર્યું છે, તો કયા વિભાગ માટે એને અપ્લાય કરી છે, રેઝ્યુમે આપ્યું છે, એ પણ લખવું પડે. કારણ કે કંપનીમાં ઘણી વખત એટલા બધા વિભાગો હોય છે, તો જો અત્યારે રેઝ્યુમે આવ્યું છે એ કયા વિભાગના અનુસંધાને છે એ પણ એના ઉપર મેન્શન કરવું પડે. એમાં સાથે સાથે પબ્લિકેશન, એમના રિસર્ચ ના કોઈ પેપર્સ હોય તો કોઈએ પબ્લિક કર્યા છે કે નથી કર્યા, તો એનું પબ્લિકેશન કયું છે, કયા કયા લોકોએ એને પબ્લિકેશન કર્યું છે, કયા દેશમાં કે રાજ્યમાં થયું છે, આ દરેક વિગત એને આપવાની હોય છે. આ રિસર્ચ અને પબ્લિકેશન આમાં અગત્યનું છે, કારણ કે આમાં રેઝ્યુમે એટલે એવો પત્ર કે જેમાં વ્યક્તિ પોતાની જે તે પોસ્ટ માટેની ખાસ લાયકાત સૂચવે છે. ઊંડાણપૂર્વકનો અભ્યાસ કર્યો હોય, કોઈ ખાસ તાલીમ લીધેલી હોય, તે દરેક વસ્તુમાં ખાસ સમાવવાની હોય છે. અને એક વ્યવસાયલક્ષી કોર્સના વિદ્યાર્થી તરીકે તમને આ દરેક બાબતની ખબર હોવી જોઈએ, કારણ કે હવે તમે જે કંઈ ભણો છો એ અગાઉના અભ્યાસક્રમ કરતા ઘણું અલગ છે. નથી ગોખવાનું, નથી જાજુ લખવા કરવાનું, પણ સમજી અને જીવનમાં ઉપયોગી આવે એવી માહિતી મેળવવાની છે. તમારી પાસે એવી માહિતી હોવી જોઈએ કે તમે કોઈ પણ પોસ્ટ માટે, કોઈ પણ બિઝનેસ માટે તમે કેમ અપ્લાય કરી શકો છો, એની તમારી પાસે વ્યવસ્થિત માહિતી હોય. કારણ કે વ્યવસાય લક્ષી કોર્સ છે એટલે એમાં કોમર્સને લગતી જ બધી વાત આવવાની છે, કમાવાને લગતી જ વાત આવશે, જોબ મેળવવાની અથવા તો બિઝનેસ મેળવવાની વાત આવશે. એપ્લિકેશનથી આપણે બાકાત નહીં રહી શકીએ. એપ્લિકેશનને આજકાલ આ બે નામથી ઓળખવામાં આવે છે, એ પણ તમને ખબર હોવી જોઈએ. બેમાં શું ફેર છે પણ ખબર હોવી જોઈએ. એના વિશે પણ આગળ વાત કરશું કે પહેલી દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો આપણને બેને સમાન લાગે છે, પણ એમાં પણ તફાવત છે. એના વિશે પણ માહિતી મેળવશું. તો રેઝ્યુમેમાં જોશે આપણને વ્યક્તિગત માહિતી ફોટા સાથે, અભ્યાસ, રિસર્ચ, કયા વિભાગ માટે રિસર્ચ કર્યું છે, તો કયા વિભાગ માટે આપણે અપ્લાય કર્યું છે, અને પાંચમું એનું પબ્લિકેશન. આજના સમયમાં આપણે પાસે ડિગ્રી હોય, ડિપ્લોમા હોય, ત્યાં ટ્રેનિંગ લીધેલી હોય, માત્ર સર્ટિફિકેટ નહીં ચાલે, પણ આપણે જે કાંઈ આપણી પાસે સ્કિલ છે એને પ્રેઝન્ટ કરતા પણ આવડવી જરૂરી છે. તો શરૂઆતમાં તો આપણે પ્રાયોગિક રીતે કોઈને આપણી સ્કિલ બતાવી નહીં શકીએ, તો આપણી પાસે જે કાંઈ નોલેજ છે, સ્કિલ છે, એને શાબ્દિક સ્વરૂપે પ્રસ્તુત કરવી પડશે. અને એના માટે આપણને યોગ્ય રેઝ્યુમે બનાવતા આવડવી જોઈએ. તો એ કઈ રીતે બનાવી શકાય કે આપણે વિનિંગ થાય, મતલબ અત્યારના સમયમાં જોબ મળવી કેટલી મુશ્કેલ છે, હરીફાઈ કેટલી વધારે છે, અને ઘણી સારી સારી કંપનીઓ તો દરેક દેશમાંથી રેઝ્યુમે મગાવતી હોય છે. એને એવો કર્મચારી જોઈએ છે કે જેને પાસે એને જરૂરી દરેક સ્કિલ એની પાસે હોય. તો હરીફાઈ ઘણી આપણી પાસે વધારે હોય છે, ત્યારે આપણું રેઝ્યુમે સ્ટ્રોંગ હોવું જોઈએ. તો એ કઈ રીતે બનાવાય એના વિશેની આપણે અહીંયા આ વિડીયોમાં માહિતી મેળવશું. हेलो, मेरी इंटरव्यू टिप्स पे जो पिछली वीडियोस थी इंट्रोडक्शन के ऊपर, एफएक्यूज के ऊपर, उसमें कमेंट्स में आप लोगों ने लिखा कि रिज्यूमे के ऊपर वीडियो बनाई जाए। सो आपका हुक्म सर आंखों पे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हाउ टू मेक अ रिज्यूमे, क्या करना है, क्या नहीं करना, डिजाइन, टेम्पलेट्स, प्रूफ रीडिंग, हर चीज आपसे इस वीडियो में शेयर करूंगा। रिज्यूमे एक ऐसा टूल है, एक ऐसा यंत्र है जो आपकी हेल्प करता है बहुत सारे तरीकों से। बहुत बार जब आप अपने लिए जॉब ढूंढ रहे होते हो तो आपसे पहले एम्प्लॉयर के पास आपका रिज्यूमे पहुंचता है, तो ये एक तरह का आपका रिप्रेजेंटेटिव है। तो आपका रिप्रेजेंटेटिव अच्छा तो होना ही चाहिए। रिज्यूमे आपके बारे में, आपकी बैकग्राउंड, आपकी डायरेक्शन ऑफ थिंकिंग, आपकी स्ट्रेंथ्स के बारे में भी एम्प्लॉयर्स को बताता है। एंड इस बात पे भी कोई डाउट नहीं है कि आपकी राइटिंग स्किल्स कैसी हैं, ये भी एम्प्लॉयर आपका रिज्यूमे देख के समझ जाता है। एंड यस, ऑफ कोर्स, रिज्यूमे आपकी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन भी एम्प्लॉयर को देता है।
आपको किस नंबर पे कॉल किया जाए या किस आईडी पे मेल किया जाए। क्योंकि मैं एक एचआर कंपनी में जॉब करता था, रिक्रूटर्स के साथ बैठता था, बहुत सारी कंपनीज के लिए मैंने इंटरव्यूज दी हैं, प्लेसमेंट्स करी हैं, तो मैं आपके साथ रिक्रूटर्स के माइंडसेट से, इंटरव्यूज के माइंडसेट से, एम्प्लॉयर के माइंडसेट से टिप्स और आइडियाज शेयर करता रहूंगा। हम शुरू करेंगे रिज्यूमे के स्ट्रक्चर और एलिमेंट से, सो दैट आप समझ जाओ कि रिज्यूमे में क्या आता है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स डिस्कस करेंगे, क्या करना है और क्या नहीं करना। मैं आपसे ये भी डिस्कस करूंगा कि कैसे आप खुद अपने रिज्यूमे की गलतियां ढूंढ सकते हो और गलतियों को अवॉइड कर सकते हो। मैंने कोशिश की है कि इस वीडियो में हर वो चीज कवर करूं जो रिज्यूमे के बारे में आपके माइंड में आ सकती है। मतलब कि इस वीडियो को देखने के बाद रिज्यूमे को लेकर आपकी नॉलेज पूरी हो, आपके माइंड में कोई डाउट ना हो, आपको और नॉलेज की जरूरत ना हो, बस एक्शन ले पाओ। एंड लास्ट में आपके साथ लिंक शेयर करूंगा उस डॉक्यूमेंट का जिसके अंदर आपको डिजाइनिंग्स, टेम्पलेट्स मिल सकते हैं, सो दैट आप अपने रिज्यूमे को और इंटरेस्टिंग बना सको। बहुत सारी कंपनीज ये सिखाने का पैसा लेती हैं, फीस लेती हैं, लेकिन ये वीडियो, ये टेम्पलेट सब कुछ आपके लिए बिल्कुल फ्री है। इनको यूज करो, अपनी लाइफ में, अपने करियर में ग्रो करो, आगे बढ़ो, यही इस चैनल की मिशन है। पहले रिज्यूमे के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। एक बेसिक रिज्यूमे मैं आपके साथ शेयर करूंगा सो दैट हम एलिमेंट्स को समझ पाएं। कुछ चीजें आपको पहले से पता होंगी, कुछ आपके लिए नहीं होंगी। आप अपने हिसाब से, अपनी जॉब के हिसाब से चीजों को आगे पीछे कर सकते हैं। सबसे पहले नेम। आपका नाम रिज्यूमे में प्रोमिनेंट होना चाहिए, मतलब कि रिज्यूमे देखते ही आपका नाम नजर आ जाए। जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो ना, तो आपका इंटरव्यूअर आपसे बात करते करते साथ में आपका रिज्यूमे देख रहा होता है, तो आपका नाम उसको रिज्यूमे देखते ही नजर आ जाना चाहिए। नेम के बाद अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स लिखना बेटर है, क्योंकि जब आप कहीं पे अपना रिज्यूमे भेजते हो तो वो जब आपके रिज्यूमे को रेफर करते हैं तो आपको कांटेक्ट करने के लिए उनको ढूंढना ना पड़े कि आपका ईमेल आईडी या नंबर कहां लिखा है। उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव। कुदरत में हर चीज का कोई ऑब्जेक्टिव होता है, कोई मकसद होता है, तो आपके करियर का भी कोई मकसद, कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। अब आप पूछोगे, लेकिन मुझे ये बताओ कि ये करियर ऑब्जेक्टिव बनाना कैसे है? आपका करियर ऑब्जेक्टिव इफेक्टिव होना चाहिए, मतलब कि एक दो लाइंस में ही रिक्रूटर को, आपके एम्प्लॉयर को क्लियर हो जाए कि आप क्या चाहते हो। एक दो लाइंस में आपको बताना है हु आई एम, what I want to be and how will I make your company successful। करियर ऑब्जेक्टिव की एक सिंपल एग्जांपल ये हो सकती है, to obtain a position that will allow me to utilize my technical skills, experience and willingness to learn in making an organization successful। So इसमें तीनों चीजें पता चल रही हैं कि आप में टेक्निकल स्किल्स और रिलेटेड एक्सपीरियंस है, जिसको आप इस जॉब के थ्रू यूज करके ऑर्गेनाइजेशन को अपनी क्वालिटीज के साथ सक्सेसफुल बनाना चाहते हो। मतलब who I am, what I want to be and how will I make your company successful क्लियर है। आप एक ही करियर ऑब्जेक्टिव लिख के हर जॉब पे मत चेको। जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, देखो कि कैसे अपने करियर ऑब्जेक्टिव को उस जॉब के साथ रिलेट कर सकते हो। आप जॉब डिस्क्रिप्शन में से एक दो वर्ड्स उठा के अपने करियर ऑब्जेक्टिव में लिख सकते हो जो आपके साथ रिलेटेड हो। इससे आपको एम्प्लॉयर की अटेंशन भी मिलेगी और एम्प्लॉयर आपके रिज्यूमे को उस जॉब के साथ रिलेट कर पाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे एक जॉब डिस्क्रिप्शन लेते हैं सिविल इंजीनियर की पोजीशन की। तो हम इस जेडी में मोटा मोटा पढ़ पा रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन कंपनी है, ऑटोकैड की नॉलेज चाहिए, इनोवेटिव बेंट ऑफ माइंड, एनालिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स चाहिए, नॉलेज ऑफ सैप विल बी एन एडेड एडवांटेज। अब इसमें हमें पता चल रहा है कि कंस्ट्रक्शन कंपनी है और कंपनी की नीड ऑटोकैड एंड सैप है, जिसकी मुझे नॉलेज है। तो हम अपने करियर ऑब्जेक्टिव को इस जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ रिलेट करके बना सकते हैं। जैसे कि आई सीक अ जॉब एज अ सिविल इंजीनियर इन अ कंस्ट्रक्शन कंपनी वेयर आई कैन यूज माय नॉलेज ऑफ ऑटोकैड एंड सैप। I wish to contribute towards organization goals through my technical skills, hard work and creativity। So इसमें आपने explain किया who I am, what I want to be and how will I make your company successful। And employer सीधा सीधा आपके career objective के साथ अपनी requirement को relate कर पाएगा। मतलब रिज्यूमे की शुरुआत में ही मामला सेट। मैं अपनी हर वीडियो में बार बार ये कहता हूं कि कोई फिक्स्ड रूल नहीं होता। इस वीडियो का पर्पस आपको आइडियाज देना है, हिंट्स देना है, टिप देना है, लेकिन अपना करियर ऑब्जेक्टिव आप खुद लिखना, अपने एक्सपीरियंस, अपने प्रोफाइल, अपनी एजुकेशन के हिसाब से लिखना। एक चीज और बता दो अगले पॉइंट पे जाने से पहले, जब आप नौकरी, मॉन्स्टर ऐसे पोर्टल्स पे रिज्यूमे अपलोड करते हो ना, तो वहां पे ऑप्शन होती है कि अलग अलग रिज्यूमे बना के रखने की। सो आप अगर 2-3 तरह की जॉब्स ढूंढ रहे हो, जैसे कि आप एमबीए मार्केटिंग हो एंड आप सेल्स, पीआर एंड एडवर्टाइजिंग तीनों एरियाज में ओपन हो, कि जहां अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए वहां जॉब करने को तैयार हो, तो आप इस वेबसाइट में जब अपना अकाउंट बनाते हो, सेम अकाउंट में 3 तरह के रिज्यूमे बना के इन जॉब पोर्टल्स पे डाल सकते हो। सो जिस जॉब पे अप्लाई कर रहे हो उसके रिलेटेड वाला रिज्यूमे सिलेक्ट करो एंड अप्लाई करो। ये तो हो गया करियर ऑब्जेक्टिव। अब इसके बाद क्या? बहुत बार मुझे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहले एकेडमिक्स के बारे में लिखा जाए या पहले एक्सपीरियंस मेंशन किया जाए। माय आंसर इज कि रिक्रूटर के लिए, एम्प्लॉयर के माइंडसेट से सोचो कि उसके लिए क्या सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप कहीं पे रिज्यूमे अपलोड करते हो या फिर कहीं रिज्यूमेस भेजते हो, तो रिक्रूटर्स के पास
इतनी बड़ी अमाउंट में रिज्यूमेज आते हैं, वो एक दिन में कितने सारे रिज्यूमे देखते हैं। तो उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो सबसे पहले होना चाहिए, सो दैट उसको जल्दी नजर आए। अगर आप फ्रेशर हो तो आपके एकेडमिक्स रिक्रूटर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। वो देखना चाहता है कि आपने कहां से पढ़ाई की है, कितने परसेंटेज आए हैं, कौन सी सर्टिफिकेशंस की है, ये सब उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है इन केस ऑफ फ्रेशर्स। एंड अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो, आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है, तो पढ़ाई तो अब पुरानी कहानी हो चुकी है। अब रिक्रूटर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि आप कहां पे जॉब कर रहे हो, क्या आपके स्किल सेट्स हैं, कैसे परफॉर्म कर रहे हो, क्या अचीव किया, वो सब उसके काम का है। सो इफ यू आर एन एक्सपीरियंस कैंडिडेट तो आपका वर्क एक्सपीरियंस इज मोर इंपॉर्टेंट, वो पहले आना चाहिए। सो फ्रेशर्स के रिज्यूमे की एग्जांपल लेते हैं। आप अपने एकेडमिक्स लिखो, जिस भी फॉर्म में लिखना चाहते हो उस फॉर्म में लिखो, टैबुलर फॉर्म में लिखना चाहते हो या बुलेट्स की फॉर्म में लिखना चाहते हो वैसे लिखो। कोई सर्टिफिकेशन है तो वो मेंशन करो, अपने एकेडमिक्स और सर्टिफिकेशन की परसेंटेज या स्कोर जरूर मेंशन करो। कई बार मुझसे ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, यार मेरा रिजल्ट दिखाने लायक नहीं और मार्क्स बताने लायक नहीं, ये मार्क्स लिखने जरूरी है क्या? अगर तो आप एक्सपीरियंस्ड हो तो परसेंटेज मार्क्स लिखने की इतनी टेंशन मत लो, वो पुरानी बात हो चुकी है, अब आपका काम बोलता है। लेकिन फ्रेशर्स के केस में ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं एम्प्लॉयर ये आइडिया लेना चाहता है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। सो अगर तो आपके ग्रेड्स, मार्क्स या परसेंटेज अच्छे हैं तो जरूर लिखो, लिखो ही लिखो। इफ यू हैव गॉट इट, फ्लॉन्ट इट, एज अ मैन मलिका शेरावत भी कहती है। बट अगर आपके मार्क्स बताने लायक नहीं है तो छोड़ सकते हो, पर ये कोई सही तरीका नहीं है, क्योंकि फ्रेशर्स के पास मार्क्स, परसेंटेज या अचीवमेंट्स के अलावा और है क्या। बट मार्क्स लिख के रिजेक्ट होने से बेटर है कि मार्क्स ना लिखो। हो सकता है इंटरव्यू की कॉल आ जाए और इंटरव्यू में आप एक्सप्लेन कर पाओ कि आपके मार्क्स कम क्यों हैं और आपने किस तरफ ज्यादा टेंशन दी और अपने आप को सेल कर पाओ। हाँ, अगर जॉब डिस्क्रिप्शन में या ओपनिंग में स्पेशली लिखा है कि डू मेंशन योर मार्क्स और परसेंटेज, उस केस में तो लिखना जरूरी है ही है। चलते हैं नेक्स्ट एलिमेंट पे। नेक्स्ट कॉलम भी आपके प्रोफाइल पे डिपेंड करेगा। अगर इंजीनियर है तो कुछ प्रोजेक्ट्स पे आपने काम किया होगा, उनको लिखो। कोई साइट, कोई गेम, कोई ऐप, कोई सिस्टम बनाया हो कॉलेज में। अगर आप एमबीए हो तो उस हिसाब से लिखो, या होटल मैनेजमेंट या किसी प्रोफेशनल फील्ड से हो तो जो भी आपकी समर प्रोजेक्ट, लाइव प्रोजेक्ट या कोई इंटर्नशिप रही हो, जो भी आपने पढ़ाई के साथ साथ किया है उसके बारे में लिख सकते हो। अगर आपके फील्ड में ट्रेनिंग्स का रोल है, जैसे कि मेरे फील्ड में, तो ट्रेनिंग्स अटेंडेड लिख सकते हो। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं कि ये इंटर्नशिप्स, ये प्रोजेक्ट्स एक तरह के आपके ट्रेलर्स हैं। आपने कैसा एक्सपीरियंस गेन किया, कैसा परफॉर्म किया, उससे इंटरव्यू रिलेट कर पाएगा कि आप जॉब में कैसा परफॉर्म करने वाले हो। इन सबको कैसे बेटर लिखना है, कैसे बेटर बनाना है, वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जब हम टिप्स की तरफ जाएंगे। कुछ आइडियाज आपके साथ शेयर करूंगा इसके बारे में भी। इसके बाद आपका स्किल सेट। आपके स्किल सेट से एम्प्लॉयर ये देख पाएगा कि जो स्किल्स उसे चाहिए वो आपके पास है, नहीं तो वो आपका और अपना टाइम वेस्ट ना करे। अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, इंजीनियरिंग या कंप्यूटर एप्लीकेशंस जैसी कोई डिग्री आपने की है, तो टेक्निकल स्किल्स का अलग कॉलम भी बना सकते हैं। उसके बाद कोई अवार्ड्स या अचीवमेंट्स रही हो तो उनको लिखो। कोई भी रिवॉर्ड या रिकॉग्नाइजेशन कुछ मिला हो, कुछ अचीव किया हो, कुछ परफॉर्म किया हो, उसके बारे में लिखो। यार मेरा केस तो बिना पानी वाला तालाब है, ना कोई अवार्ड है ना कोई रिवॉर्ड है। जिनको लगता है कि उनके पास कोई अचीवमेंट नहीं है, कुछ लिखने लायक नहीं है, तो अपने पास्ट एक्सपीरियंस को याद करो, कुछ ना कुछ जरूर निकल आएगा बताने लायक। स्पोर्ट्स में कुछ ऐसा किया हो या किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया हो, या कोई अचीवमेंट जो आपकी क्वालिटीज बता सके, कोई इनिशिएटिव लिया हो, कुछ कहीं कंट्रीब्यूट किया हो, छोटी ही सही अचीवमेंट है तो जरूर मेंशन करो। एंड लास्ट में कुछ पर्सनल डिटेल, सो दैट एम्प्लॉयर आपको पर्सनल लेवल पे भी समझ पाए। इसमें आप अपनी स्ट्रेंथ्स, हॉबीज, डेट ऑफ बर्थ, स्पोकन लैंग्वेजेस जैसी चीजें लिख सकते हो। हमने बेसिक स्ट्रक्चर को तो समझ लिया, अब कुछ टिप्स डिस्कस करते हैं कि कैसे आप अपने रिज्यूमे को और बेटर लिख सकते हो और बेटर बना सकते हो। फर्स्ट टिप, यूज कीवर्ड्स। आप जब अपना रिज्यूमे बनाओ तो कीवर्ड्स का ध्यान रखो। आपके रिज्यूमे में कुछ कीवर्ड्स होने चाहिए। ये कीवर्ड क्या होते हैं, इससे क्या फायदा होता है, इनको कैसे ढूंढना और कैसे अपने रिज्यूमे में डालना है, ये सब मैं आपको अभी बताता हूँ। आजकल जॉब पोर्टल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। मैक्सिमम जॉब्स भी ऑनलाइन ढूंढी जाती हैं। 90% रिज्यूमेज या तो ऑनलाइन पोस्ट किए जाते हैं या फिर ईमेल। इसलिए रिक्रूटर्स भी मैक्सिमम कैंडिडेट्स को ऑनलाइन ही सर्च करते हैं। कीवर्ड्स वो वर्ड्स हैं जिनको एम्प्लॉयर यूज करते हैं रिज्यूमेस को ढूंढने के लिए। जब एक रिक्रूटर जॉब पोर्टल पे जाता है तो वो उन कीवर्ड्स को डालता है रिज्यूमे सर्च करने के लिए, और ये कीवर्ड्स अगर आपके रिज्यूमे में होंगे तो आपके रिज्यूमे के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। दूसरा फायदा यह है कि कीवर्ड्स आपके रिज्यूमे को प्रोफेशनल लुक देते हैं और आपकी वर्ड चॉइस भी इंप्रेसिव लगती है। इन कीवर्ड्स को ढूंढना बहुत आसान है। आप जिस तरह की जॉब चाह रहे हो उसको जॉब पोर्टल पे सर्च करो। फॉर एग्जांपल हमने सर्च किया अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव और एक्सपीरियंस डाल दिया 0 ईयर यानी कि फ्रेशर। जो जॉब्स आपको मैचिंग लगे उनको खोलो। कुछ रिजल्ट्स हमें नजर आ रहे हैं, इस पे क्लिक करते हैं। अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव की ओपनिंग, ये रही इसमें की स्किल्स, ये है आपके कीवर्ड्स। बैलेंस शीट, जनरल अकाउंटिंग, जनरल लेजर,
इन कीवर्ड्स को कॉपी करके किसी एक डॉक्यूमेंट में एक जगह लिखते रहो। ऐसे और भी जो रिलेटेड जॉब लगे उसको भी खोलो, उसके अंदर से भी कीवर्ड्स उठाओ और कॉपी करके एक जगह पे पेस्ट कर दो। एक और जॉब ले लेते हैं सो दैट हमें क्लियर हो जाए। ये रही थर्ड जॉब और इसके अंदर से कीवर्ड्स उठाए और हमने इसको भी कंपाइल कर दिया एक ही डॉक्यूमेंट में। सो अब हमें पता है कि एम्प्लॉयर्स क्या वर्ड्स यूज करते हैं कैंडिडेट को ढूंढने के लिए, क्या सर्च करते हैं, कौन से कीवर्ड्स हैं जिनके आसपास वो घूम रहे हैं। अब इनमें से जो कीवर्ड आपको अपने काम के लगे, अपने रिलेटेड लगे, जो आपकी स्किल, आपकी डिग्री, आपके नॉलेज के रिलेटेड हो, जैसे कि आपको MS ऑफिस आता है तो अलग लिख लो, TDS और टैक्सेशन की भी समझ है तो ये भी अलग लिख लो, MIS भी आपको अपनी स्किल का पार्ट लगता है एंड VAT से भी एक्विंटेड हो तो वो भी लिख लो। आप नोटिस करो कि कुछ कीवर्ड्स तो ऐसे हैं जो हर जॉब में है, जैसे कि MIS, टैली, इट मींस ये ऑल इंपॉर्टेंट है और अगर ये आपसे रिलेटेड है तो इनको जरूर लिखो। अब आप अपने रिज्यूमे में देखो कि कैसे इन वर्ड्स को नेचुरली अपने रिज्यूमे में फिट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपने अपने रिज्यूमे में लिखा हुआ है कि आई हैव नॉलेज ऑफ टैक्सेशन, बट अब आपको पता है कि रिज्यूमे में TDS और VAT लिखना भी जरूरी है, उससे मेरे रिज्यूमे के चांसेस बढ़ेंगे और आपको TDS और VAT की नॉलेज भी है। तो अब आप सेम लाइन को इस तरह से लिख सकते हो, आई हैव नॉलेज ऑफ टैक्सेशन इन एरियाज लाइक TDS, VAT, एक्सेट्रा। इन कीवर्ड्स को इंक्लूड करने से आपके रिज्यूमे के जल्दी और ज्यादा विजिबल होने के चांसेस बढ़ गए, मींस जॉब मिलने के चांसेस बढ़ गए। अब आप अपने फील्ड के हिसाब से जॉब पोर्टल्स पे जाओ, अपने रिलेटेड कीवर्ड्स ढूंढो और अपने रिज्यूमे में फिट करो। और ये सब नेचुरली करना, जबरदस्ती फिट मत करना, आर्टिफिशियल हो जाएगा, पता लग जाएगा। सेकंड टिप, अवॉइड पैराग्राफ्स। आप पैराग्राफ की जगह बुलेट पॉइंट्स में अपनी इंफॉर्मेशन लिखो। जितना आपका रिज्यूमे साफ सुथरा होगा उतना प्रेजेंटेबल लगेगा। और एक दिन में रिक्रूटर को हंड्रेड्स ऑफ रिज्यूमे देखने होते हैं। अगर आपके रिज्यूमे में बुलेट पॉइंट्स में चीजें लिखी हुई हैं तो उसके लिए वो प्लेट में परोसे हुए खाने की तरह है, आपके बारे में जानना उसके लिए इजी हो जाएगा। और अगर आपने पैराग्राफ में लिखी है तो इसका मतलब है खेतों में से खुद ही सब्जी निकालो, उसको पकाओ और खाओ, जो कि रिक्रूटर के लिए मुश्किल है। सो जितनी आपके रिज्यूमे पे रिक्रूटर को मेहनत कम करनी पड़ेगी उतने आपके चांसेस ज्यादा। सो बुलेट पॉइंट्स को यूज करो और पैराग्राफ्स को अवॉइड करो। थर्ड पॉइंट, बैकअप योर प्रोजेक्ट्स एंड अचीवमेंट्स विद क्वालिटीज एंड स्ट्रेंथ्स। मतलब डांस पे चांस मारना है। एग्जैक्टली, चांस पे डांस मारना बहुत जरूरी है। जो लोग चांस पे डांस नहीं मारते ना, वो चांस को खो बैठते हैं। सो रिज्यूमे आपके लिए चांस है कि कैसे आप एम्प्लॉयर को खुद के बारे में बेस्ट बता सकते हो। आप अपनी स्किल्स को, अचीवमेंट्स को सिंपल तरीके से भी लिख सकते हो या उनमें से एक दो पॉइंट्स को बेटर बना सकते हो। लेट मी टेल यू हाउ टू बैक अप योर प्रोजेक्ट्स एंड अचीवमेंट्स विद योर स्किल्स एंड स्ट्रेंथ्स। एक एग्जांपल लेते हैं कि आपने अपने अचीवमेंट में लिखा कि आई वाज सिलेक्टेड एज अ टीम लीडर बाय ABC Infosystems टू डायरेक्ट अ ग्रुप ऑफ 5 पीपल। अब इसी लाइन पे चांस पे डांस मारना है, मतलब कि अपनी अचीवमेंट को बैकअप करना है किसी अपनी स्ट्रेंथ के साथ। सो इस लाइन को हम ऐसे लिख सकते हैं, बिकॉज ऑफ माई स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल एंड टीम मैनेजमेंट स्किल्स आई वाज सिलेक्टेड एज टीम लीडर बाय ABC Infosystems टू डायरेक्ट अ ग्रुप ऑफ 5 पीपल। अब इसमें आपने अपनी अचीवमेंट तो बताई कि आप टीम लीडर सिलेक्ट हुए थे, 5 लोगों को लीड किया था, लेकिन साथ में अपनी स्ट्रेंथ भी बता दी कि मेरे अंदर वो इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, टीम मैनेजमेंट स्किल्स हैं, जिसकी वजह से मुझे सिलेक्ट किया गया था, खुद को और अच्छे से बेचा, चांस पे डांस मारा। हाँ, हर पॉइंट को भी ऐसे मत लिखना, वो आर्टिफिशियल हो जाएगा, लेकिन 5 में से एक पॉइंट या 2 पॉइंट को ऐसे लिख सकते हो, चांस पे डांस मार सकते हो। नेक्स्ट टिप, यूज प्रोफेशनल फॉन्ट। अगर जॉब में प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए तो आपके रिज्यूमे में भी प्रोफेशनलिज्म दिखना चाहिए, तो प्रोफेशनल फॉन्ट्स यूज करो, जैसे कि एरियल, टाइम्स न्यू रोमन, कैलिब्री, एक्सेट्रा। नेक्स्ट टिप, फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज बहुत छोटा या बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। प्रिंट करके चेक करो कि रीडेबल है कि नहीं है। अगर टाइम्स न्यू रोमन, कैलिब्री या एरियल यूज कर रहे हो तो साइज 12 रख सकते हो। आप चाहो तो हेडिंग्स को थोड़ा बड़ा कर सकते हो सो दैट वो अटेंशन को ग्रैब कर सके। सिक्स्थ टिप, राइट प्रिंटिंग। फोटोकॉपीज को ना अवॉइड करो। फोटोकॉपीज में कहीं ना कहीं क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होती है और इंक इतनी शार्प नहीं होती। सो या तो अच्छे प्रिंटर से प्रिंट करो या अच्छे प्रिंटर से प्रिंट करवा लो, क्योंकि हर चीज इंप्रेशन में काउंट करती है। सेवंथ टिप, एक्शन वर्ब। आपको अपने रिज्यूमे में एक्शन वर्ब्स यूज करने चाहिए। मैं एक्शन वर्ब्स को एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करता हूं। फॉर एग्जांपल, आपने अपने रिज्यूमे में लिखा आई वाज हैंडलिंग एंड एड्रेसिंग क्लाइंट कंसर्न्स, तो हैंडलिंग और एड्रेसिंग की जगह हम लिख सकते हैं आई हैंडल्ड एंड एड्रेस्ड क्लाइंट कंसर्न्स। हैंडल्ड और एड्रेस्ड ये हैं एक्शन वर्ब्स। आप नोटिस करो, इनका इंपैक्ट ज्यादा है, ये दमदार लगते हैं, डिसिसिव लगते हैं, प्रोफेशनल लगते हैं, क्रिस्प लगते हैं। ऐसे ये लिखने की जगह कि आई वाज गिवन चार्ज फॉर कम्युनिकेटिंग फीडबैक टू मिडिल मैनेजमेंट, अगर आप कम्युनिकेटिंग को रिप्लेस करते हो एक्शन वर्ब के साथ, आई कम्युनिकेटेड फीडबैक टू मिडिल मैनेजमेंट, तो इंपैक्ट में डिफरेंस आता है। इन एक्शन वर्ब्स की लिस्ट भी आपको उस डॉक्यूमेंट में मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं एंड में आपके साथ शेयर करूंगा। सो आप भी अपने रिज्यूमे में देखो कि कैसे वर्ब के साथ ING लगाने की जगह उनको एक्शन वर्ब की फॉर्म में लिख सकते हो। अब कुछ डोंट्स डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सी चीजें हमें नहीं करनी। डोंट यूज फैंसी पेपर और कलर्ड पेपर।
हाँ, अगर आपका फील्ड ऐसा है कि आप क्रिएटिव राइटर हो या ग्राफिक डिजाइनर हो, फिर ये चीजें चल सकती हैं, लेकिन प्रोफेशनल जॉब के लिए आपका रिज्यूमे भी प्रोफेशनल होना चाहिए, A4 व्हाइट शीट होनी चाहिए। सेकंड, अपने रिज्यूमे में जार्गन्स और स्लैंग्स को मत यूज करो। जार्गन्स मतलब कोई ऐसे वर्ड्स या शॉर्ट फॉर्म्स जो आप बोलते तो आ रहे हो बट वो कॉमन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपके कॉलेज में AMC कहते हैं एडोबी मार्केटिंग क्लाउड को, बट हो सकता है कि एम्प्लॉयर के लिए नया टर्म हो, उसको AMC का ना पता हो, एडोबी मार्केटिंग क्लाउड बोलता हो। सो बेटर ये है कि अपने रिज्यूमे को लिखने वक्त इन चीजों का भी ध्यान रखो कि कोई ऐसे वर्ड तो नहीं लिख रहे जो आपके लिए कॉमन है लेकिन बाकियों को इसके बारे में नहीं पता। थर्ड, डू नॉट इंक्लूड इररिलेवेंट और नेगेटिव इंफॉर्मेशन। अगर आप कुछ नेगेटिव लिखते हो अपने रिज्यूमे में, जैसे कि वीकनेस लिख दी, तो याद रहे कि बहुत सारी जगह पे आप नहीं पहुंचते, आपका रिज्यूमे पहुंचता है। मतलब आप जाके एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि इसके पीछे क्या कारण है, क्या रीजन है। एम्प्लॉयर अपने हिसाब से उसका मीनिंग लेगा, आपके नेगेटिव पॉइंट को अपने हिसाब से समझेगा और उस जॉब के लिए आपके चांसेस कम हो सकते हैं। इसलिए नेगेटिव और इररिलेवेंट चीजों को मत लिखो। फोर्थ टिप, डोंट कॉपी पेस्ट फ्रॉम इंटरनेट। चोरी करना पाप है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि रिक्रूटर्स एक दिन में कई सारे रिज्यूमे देखते हैं, तो अगर आप नेट से उठा के लिखोगे ना तो उनको रिज्यूमे देखते आइडिया हो जाएगा कि इसने नेट से चेपा है। उन्होंने वो इन्फॉर्मेशन, सेम इन्फॉर्मेशन कई जगह और भी पढ़ी होगी और आपका इंप्रेशन नेगेटिव हो जाएगा। इसलिए चेपो मत, अपना लिखो। फिफ्थ टिप, छोटी सी टिप है लेकिन मुझे लगा वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब मैं इंटरव्यूज देता था मैंने ये कई बार नोटिस किया था। फिफ्थ टिप है, डोंट फोल्ड योर रिज्यूमे। जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो ना तो रिज्यूमे को किसी फोल्डर में या फाइल में लेके जाओ। एंड अगर किसी रीजन से फोल्ड करना पड़ गया तो याद रहे कि जब फोल्ड करो तो इस चीज का ध्यान रखो कि जहां पे टेक्स्ट लिखा है वहां से फोल्ड ना करो। वो फोल्ड की लाइन टेक्स्ट के ऊपर आ जाएगी तो टेक्स्ट पढ़ा नहीं जाएगा और अच्छा नहीं लगेगा। अब हमने रिज्यूमे के स्ट्रक्चर को समझ लिया, डूज समझ लिया, डोंट समझ लिया। अब बात करते हैं प्रूफ रीडिंग की कि कैसे आप रिज्यूमे में गलतियों को अवॉइड कर सकते हो, गलतियों को ढूंढ सकते हो। किसी भी रिटन मटेरियल में गलतियों को ढूंढना, सही करना, उसको प्रूफ रीडिंग कहते हैं। मैंने बहुत बार ऐसे रिज्यूमे देखे जिनको देख के बंदा सोचता है कि इसको जॉब ना ही दें तो अच्छा है। जो अपने रिज्यूमे को ढंग से नहीं बना पाया वो जॉब के ढंग से करेगा। आई रिमेंबर एक कैंडिडेट ने लिखा था, आई ब्लॉक सिलेंडर इन एडवांस फॉर इंपॉर्टेंट कस्टमर। मतलब कैलेंडर की जगह सिलेंडर हो गया और मैंने भी पूछ लिया, भैया ब्लैक का काम करते हो क्या? एक ने लिखा था, आई टेक कस्टमर ऑर्डर्स। ऑर्डर यानी कि स्मेल। ऑर्डर्स का एक आर मिस हो गया तो मतलब हो गया मैं कस्टमर की दुर्गंध लेता हूं। ये वो एरर्स है जो आपको कंप्यूटर भी नहीं बताएगा क्योंकि ऑर्डर, सिलेंडर, कैलेंडर ये वर्ड्स सही तो हैं, कंप्यूटर के लिए तो सही हैं, पर आपके रिज्यूमे की ये गलतियां वाट लगा सकती हैं। सो क्योंकि सवाल नौकरी का है, करियर का है, तो प्रूफ रीड कर ही लेना चाहिए। कुछ टिप्स मैं आपको दे रहा हूं कि कैसे आप अपने रिज्यूमे को प्रूफ रीड कर सकते हो। फर्स्ट, टेक अ प्रिंट आउट। अपने रिज्यूमे का प्रिंट आउट निकालो, फिर उसके बाद पढ़ो। कुछ एरर्स ऐसे होते हैं फॉर्मेटिंग में, अलाइनमेंट में, जो हो सकता है सिस्टम में हमें पता ना चले, लेकिन जब प्रिंट आउट हाथ में होता है तो हम पूरे रिज्यूमे को एक साथ देख पाते हैं, काफी सारे एरर्स स्पॉट कर पाते हैं। सेकंड, चेक होमोनियम्स। होमोनियम्स वो वर्ड होते हैं जो बोलने में तो सेम होते हैं लेकिन मीनिंग अलग अलग होता है। जैसे कि एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट, एक का मतलब है स्वीकार करना एंड दूसरे का है सिवाय। ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट बोलने में सेम है बट मीनिंग अलग अलग है। सो ऐसे वर्ड्स के सही स्पेलिंग लिखे हैं वो प्रूफ रीडिंग में जरूर चेक कर लेना, वरना मीनिंग गड़बड़ हो जाएगा। थर्ड, चेक पंक्चुएशन। अपने रिज्यूमे में कॉमास, फुल स्टॉप्स, कोटेशन मार्क्स जहां जाएं उनको अच्छे से चेक कर लो कि सही जगह लगे हैं, क्योंकि इनके इधर उधर होने से मीनिंग बदल जाता है। लेट मी ईट मदर, मुझे खाने दो माँ। इस लाइन में से अगर कॉमा निकाल दें तो ये बन जाएगा लेट मी ईट मदर, मतलब मुझे माँ को खाने दो। फोर्थ, वॉच आउट फॉर नंबर्स। जहां जहां नंबर्स लिखे हैं, डेट हो, ईयर हो, मार्क्स हो, उनको अच्छे से चेक कर लो। कोटिंग अ रॉन्ग नंबर कैन लीड टू अ वेरी नेगेटिव इंप्रेशन। फिफ्थ पॉइंट जो मुझे बहुत काम का लगता है, गलतियां ढूंढने के लिए मेरे को ये बेस्ट लगता है, रीड रिज्यूमे बैकवर्ड्स। जब आप अपने रिज्यूमे को नॉर्मल फ्लो में पढ़ते हो ना तो कोई गलती होगी भी तो कई बार हमारा ब्रेन उसको नोटिस नहीं कर पाता, क्योंकि हमने खुद लिखा, हमें मीनिंग पता होता है तो हम फ्लो में उसको पढ़ जाते हैं, हमारा ब्रेन खुद से उसका मीनिंग बनाता जाता है, वर्ड्स डालता जाता है। लेकिन अगर आप अपने रिज्यूमे को उल्टा पढ़ोगे, लास्ट वर्ड टू फर्स्ट वर्ड पढ़ोगे, तो मीनिंग नहीं बनेगा, एक एक वर्ड पे आपका फोकस जाएगा और गलती ट्रैक कर पाओगे, चेंज कर पाओगे, अपने रिज्यूमे को ठीक कर पाओगे। सिक्स्थ एंड लास्ट टिप ऑन प्रूफ रीडिंग, आस्क समवन एल्स टू रीड इट। अपने रिज्यूमे को किसी और को दो पढ़ने के लिए, गलतियां ढूंढने के लिए। हो सकता है आपसे कोई गलती मिस हो गई हो तो दूसरे से चेक करवाना, एक सेकंड ओपिनियन लेना हमेशा बेटर है। सो हमने इस वीडियो में रिज्यूमे के स्ट्रक्चर को समझा, क्या क्या करना है उन डूज को समझा, क्या नहीं करना उन डोंट्स को समझा, और इसके अलावा प्रूफ रीड कैसे करना है, गलतियां कैसे ढूंढनी है, उसके ऊपर भी कुछ टिप्स को समझा। नो डाउट कि रिज्यूमे लिखना भी एक आर्ट है और ये आर्ट आपको आपकी जॉब तक पहुंचाता है। जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि इस वीडियो के एंड में आपको एक डॉक्यूमेंट दूंगा जिसमें बहुत सारी हेल्पफुल रिसोर्सेज होंगे, इंफॉर्मेशन होगी। सो अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आपको कॉर्नर में एक आई का बटन नजर आ रहा होगा, आप उस आई के बटन पे क्लिक कर सकते हैं, आपको वो लिंक मिल जाएगा।
नहीं तो आप नीचे लिखे URL पे जा सकते हैं और उस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं पहले इन ट्रेनिंग के लिए चार्ज करता था, लेकिन अब ये सब फ्री है। मैंने कोशिश की आपकी हेल्प करने की, आप भी दूसरों की हेल्प करें उनके करियर में। इस वीडियो को शेयर जरूर करें। मैंने आपके करियर के लिए कई सारी वीडियोस बनाई है और आगे भी बनाता रहूंगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने फोन में नोटिफिकेशंस को ऑन कर सकते हैं, सो दैट मेरी हर वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें और मैं आपकी हेल्प कर पाऊं आपके करियर में ग्रो करने के लिए, लाइफ में खुश रहने के लिए। वीडियो अगर काम की लगी हो तो कमेंट्स में जरूर बताना, और अच्छी भी लगी हो तो लाइक जरूर दबाना। दिल से दुआएं आपके लिए। ऑल द बेस्ट, स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड। અત્યાર સુધી તમે ખાલી જોબ મેળવવા માટે એપ્લિકેશન શબ્દ માટે જ એ શબ્દ લખવા, વાંચવા કે બોલવા માટે ટેવાયેલા હતા. આજે નવા બે શબ્દ તમે જાણ્યા, રેઝ્યુમ અને કરિક્યુલમ વિટે. આ બંને પણ એક દ્રષ્ટિએ જોઈએ આપણને તો સમાન જેવા લાગે છે, એપ્લિકેશનને મળતા લાગે છે, છતાં તમે જોયું હશે કે થોડો એમાં ફેર છે. અને આ બંનેમાં શું તફાવત છે એ પણ આપણે વ્યવસ્થિત સમજી લઈએ આ વિડીયો દ્વારા, જેથી કરીને આપણને કોઈ ગેરસમજ ન થાય. જ્યારે આપણે કોઈ કામ માટે પ્રેઝન્ટ થઈએ છીએ ત્યારે આપણું વિઝન એકદમ ક્લિયર હોવું જોઈએ, આપણી જાણકારી એકદમ આધુનિક લેવલની હોવી જોઈએ, અને તો જ અત્યારની કંપની છે એ આપણને જોબ આપશે. કારણ કે દરેકને છે એ આધુનિક ટ્રેનિંગ મેળવેલી વ્યક્તિ જોતી હોય છે, જાણકારી સભર વ્યક્તિ જોતી હોય છે, અને રિસેપ્શનિસ્ટ એવું બનવું જ પડે. માટે જ્યારે રિસેપ્શનિસ્ટ માટે તમે કરિક્યુલમ વિટે કે રેઝ્યુમ તૈયાર કરતા હો ત્યારે પણ આ બાબતનો તમને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. તો એના તફાવત વિશે પણ આ વિડીયોમાં માહિતી મેળવીએ. इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल दशमलव को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। जॉब्स के लिए अप्लाई करते वक्त आप सभी ने CVs या रिज्यूमेज तैयार किए होंगे, लेकिन आप में से ज़्यादातर लोग ये नहीं जानते होंगे कि CV और रिज्यूमे में फ़र्क क्या होता है। इसकी वजह यह है कि भारत में रिज्यूमे और CV के बीच में कोई ख़ास फ़र्क माना नहीं जाता। चाहे जॉब एडवर्टीज़मेंट के अंदर CV लिखा हो या रिज्यूमे लिखा हो, लोग अपना एक डॉक्यूमेंट जो पहले से बना कर रखा हुआ है उसको भेज देते हैं। हालांकि भारत के अंदर इन दोनों चीज़ों के बीच में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं समझा जाता है, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़रूरी है कि आप CV और रिज्यूमे के बीच में फ़र्क समझें और ज़रूरत के मुताबिक जो चीज़ मांगी गई है उसी को एम्प्लॉयर के पास भेजें। इस वीडियो में मैं आपको रिज्यूमे और CV के बीच में फ़र्क को ही समझाऊंगा। आगे बढ़ने से पहले एक यूजुअल अपील कि आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। CV का मतलब होता है करिकुलम विटे। करिकुलम विटे का मतलब होता है द कोर्स ऑफ लाइफ। CV करिकुलम विटे एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है कोर्स ऑफ लाइफ या लाइफ की जर्नी। करिकुलम विटे एक बहुत डिटेल्ड डॉक्यूमेंट होता है। इसमें 2 पन्ने, 4 पन्ने, 6 पन्ने, ये काफ़ी बड़ा डॉक्यूमेंट हो सकता है और इसके अंदर आप अपने सारी अचीवमेंट्स, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, आपकी जो दूसरी अकम्पलिशमेंट्स हैं, आपके जो क्रेडेंशियल्स हैं, उन सबको बहुत विस्तार से लिखते हैं। और करिकुलम विटे को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखा जाता है, मतलब कि जो चीज़ पहले आई है उसको पहले लिखा जाएगा, जो चीज़ बाद में आई है उसको बाद में लिखा जाएगा। या इसको रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी आप लिख सकते हैं, यानी उल्टा करके कि जो चीज़ सबसे लेटेस्ट है उसको सबसे पहले लिखा और उसके बाद उससे पीछे वाली चीज़ और जो सबसे पुरानी चीज़ है वो सबसे लास्ट में जाएगी। ये एक चीज़ है। करिकुलम विटे में डिटेल्स कितनी डिटेल होती है ये भी जान लेते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर अपनी 10वीं क्लास के सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स अगर लिखते हैं, या आप ये बताते हैं कि आपने 12वीं क्लास के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े, या आप ये बताते हैं कि आपने अपनी PhD के दौरान कौन कौन से पेपर्स पब्लिश किए, उनके टाइटल्स क्या थे, वो कहाँ कहाँ पब्लिश हुए, ये सारी चीज़ें अगर आप देते हैं तो ये करिकुलम विटे का स्वरूप है। इसके अंदर इस तरह की डिटेल्स जाती हैं। रिज्यूमे क्या होता है? रिज्यूमे
करिकुलम विटे का एक बहुत संक्षिप्त, बहुत कंसाइज रूप होता है। करिकुलम विटे जहाँ कई सारे पेजेस में होता है, रिज्यूमे 1 या 2 पेजेस से ज़्यादा का नहीं होता। रिज्यूमे के अंदर आप बिल्कुल स्पेसिफिक चीज़ें बताते हैं, मतलब ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बताएंगे सब कुछ पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। सीवी और रिज्यूमे के अंदर एक और बहुत ज़्यादा बड़ा मेजर फ़र्क ये होता है कि रिज्यूमे को आप हर एप्लीकेशन के साथ बदलते हैं, यानी जो एम्प्लॉयर है, जो जॉब डिस्क्रिप्शन दी गई है उसके मुताबिक आप अपने रिज्यूमे को चेंज करते हैं। जो चीज़ आपको लगे कि ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसको आप पहले लिखते हैं, जो कम महत्वपूर्ण है उसको बाद में लिखते हैं। लेकिन सीवी के अंदर अमूमन चेंज नहीं होता। सीवी एक डॉक्यूमेंट है जो कि एक बार आपने बना दिया तो वो सेट रहता है, उसको आप किसी भी एम्प्लॉयर को भेज सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर लिखी हुई सारी वो आपके ओवरऑल अचीवमेंट्स का, ओवरऑल जो आपकी लाइफ की जर्नी रही है उसके बारे में वो डॉक्यूमेंट होता है, तो उसके अंदर ज़्यादा चेंजेस नहीं होते। रिज्यूमे के अंदर आप जॉब के मुताबिक, एडवर्टीजमेंट के मुताबिक, जॉब डिस्क्रिप्शन के मुताबिक चेंज करते हैं। एक उदाहरण लेके अगर मैं बताऊं तो मान लीजिए कि आपने एक एडवर्टीज़मेंट देखी जिसमें इस बात के ऊपर ज़्यादा फोकस है कि आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन बेसिक, ठीक है, ग्रेजुएट होना चाहिए, लेकिन उसमें ज़्यादा फोकस इस बात पे दिया गया है कि आपके पास ये वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, और माइन्यूट डिटेल में बताया गया है कि अगर सॉफ्टवेयर की फील्ड की अगर मैं बात करूं तो उसमें कहा गया है कि आपको सी की नॉलेज होनी चाहिए, C++ की नॉलेज होनी चाहिए, जो डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं। सो उस तरह की जो डिटेल्स मांगी गई हैं, तो रिज्यूमे के अंदर आप क्या करेंगे कि जो आपका वर्क एक्सपीरियंस है आप उसको पहले लिखेंगे। क्यों? क्योंकि जो एम्प्लॉयर है वो इसी बात के ऊपर फोकस रखना चाह रहा है कि आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या है। जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो बेसिक है, ठीक है, आपके पास ग्रेजुएशन है, आपके पास 60% है, 50% है, डजेंट मैटर, बट जो आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप उसको पहले रखेंगे। लेकिन करिकुलम विटे में हर चीज़ को बराबर वेटेज देते हुए आप उसको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट कर देते हैं। तो एक तो ये फ़र्क है। फिर ये भी हम जान लेते हैं कि अगर आप भारत के बाहर एप्लीकेशंस भेजते हैं तो इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे रिज्यूमे मांगा गया है तो आप रिज्यूमे भेजें, और करिकुलम विटे मांगा गया है तो करिकुलम विटे भेजें। अमेरिका और कनाडा के अंदर रिज्यूमे का चलन है, वहाँ पर 1 या 2 पेज का रिज्यूमे ही मांगा जाता है और करिकुलम विटे वहाँ नहीं चलता। जबकि इसके उलट यूनाइटेड किंगडम और यूरोप के जो बाकी हिस्से हैं वहाँ पर करिकुलम विटे का ही चलन है, वहाँ रिज्यूमे नहीं चलता। तो अगर आप मान लीजिए यूके की किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं तो आप वहाँ अपना करिकुलम विटे भेजेंगे। वैसे ऑफ कोर्स ये जो बात है ये एडवर्टीज़मेंट के अंदर मेंशन होती है कि वो आपसे रिज्यूमे मांग रहे हैं या करिकुलम विटे मांग रहे हैं, बट इन जनरल यूरोप के अंदर करिकुलम विटे चलता है। लेकिन कुछ कंट्रीज़ ऐसी भी हैं जहाँ पर कि रिज्यूमे और करिकुलम विटे के बीच में कोई ख़ास फ़र्क नहीं माना जाता। इसमें ज़ाहिर तौर पर इंडिया शामिल है, साउथ अफ्रीका शामिल है और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। तो इन तीनों कंट्रीज़ के अंदर अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो करिकुलम विटे और रिज्यूमे के अंदर कोई फ़र्क नहीं माना जाता। आप चाहे तो एक कंसाइज रिज्यूमे टाइप का डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं या आप एक करिकुलम विटे टाइप का डिटेल डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या भेजें और एम्प्लॉयर की क्या इच्छा है। तो यहाँ पर ये मामला थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, लेकिन यूरोप और अमेरिका, कनाडा में बात बहुत स्पष्ट है। अमेरिका में तो ख़ास तौर पे ये माना जाता है कि एक ही पन्ने का रिज्यूमे होना चाहिए। अगर दूसरे पन्ने पे रिज्यूमे जा रहा है तो उसको अच्छा नहीं माना जाता। वहाँ लोग चीज़ों को बहुत कंसाइज, बहुत संक्षिप्त रूप में देखना चाहते हैं कि एक बार एक पेज उठाया और उसी के ऊपर वो सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जिससे कि एम्प्लॉयर आपको जज कर सके कि आप उनके लिए सूटेबल एम्प्लॉय हैं या नहीं हैं।
रिज्यूमे और करिकुलम विटे में इस बारे में भी फ़र्क आता है कभी कभी कि अगर आप एकेडमिक जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एकेडमिक पोजीशंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे लेक्चरर, प्रोफेसरशिप, पीएचडी, इस तरह की चीज़ों के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको करिकुलम विटे भेजना चाहिए, क्योंकि इस तरह की पोजीशंस में डिटेल की आवश्यकता होती है। जबकि अगर आप प्राइवेट जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अमूमन रिज्यूमे भेजा जाता है। एक और चीज़ भारत में देखने में ये आती है कि प्राइवेट जॉब्स में अक्सर रिज्यूमे मांगा जाता है और गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर या पब्लिक सेक्टर की जॉब्स के अंदर करिकुलम विटे मांगा जाता है। हालांकि भारत में दोनों इंटरचेंजेबल हैं, दोनों चीज़ों को मिला जुला कर ही समझा जाता है, लेकिन फिर भी ऐसा देखा गया है कि गवर्नमेंट सेक्टर में करिकुलम विटे की तरफ झुकाव ज़्यादा रहता है और प्राइवेट सेक्टर में रिज्यूमे की तरफ झुकाव ज़्यादा रहता है। सो उम्मीद है कि ये सारे डिफरेंसेस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आप जब अगली बार अपनी जॉब एप्लीकेशन भेजेंगे तो आप सही तरीके का डॉक्यूमेंट उसके साथ अटैच करेंगे। इस बारे में अगर आपके कोई भी सवाल हों तो प्लीज़ कमेंट में आप हमसे पूछिए और अगले वीडियो तक के लिए मेरे साथ बने रहिए। नमस्कार।